Are we happy to be here? And David said, I was glad when they said unto me. जब दाऊद कहता है कि मैं आनंद से भर गया जब उन्होंने कहा आओ हम प्रभु के भवन में जाए। सचमुच सुबह का आशीष हमें मिला है और हम वही तैयारी से आए कि प्रभु आज हमसे फिर बातें करें। दोपहर का आत्मिक भोजन तो हो गया है, शरीर का भोजन तो हो गया है, पर आत्मिक के लिए और भी भूख है। तो आया हम अपने भूख को बढ़ाए और प्रभु से मांगे, प्रभु हमें किस तरह जाना है वचन में। हम प्रभु से ये मांगेंगे क्योंकि प्रभु कहता है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खुल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो हम प्रभु के पास आए हैं और उस भूख से आए हैं कि प्रभु हमें भरे। आया अपने सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। Heavenly Father, Creator and earth, once again thank you and praise you, Lord, for this afternoon hour that you have given us, Lord. I thank you and praise you, Father, Lord, for being with us till this time, O Lord, giving us a spiritual food, O Lord, and keeping us strong, O Father, Lord. Yes, Father, Lord, what we can ask you, Lord, but we know, Lord, you know our hunger and thirst, O Father, Lord. We are here to receive you, Lord. We are here to receive you in us, O Father, Lord. Yes, Father, Lord, that this word, what we hear, Lord, not only to read or to hear, O Lord, but to put in our lives, O Father, Lord, to go more stronger and closer to Thee, O Lord Jesus. Yes, Father, Lord, I thank you and praise you for every brother, every sister, every children that you have given us here, O Lord, that we may have fellowship with Thee, O Lord. And we need your presence over here, O Lord. We want your Holy Ghost to fill us with your Holy Spirit, O Father, Lord. Open our spiritual ears, O Lord, to hear your voice, O Father, Lord. Yes, Father, Lord, I place our pastor in your hands, O Father, Lord. Yes, Father, Lord. Hide him behind you, Father Lord, and use him. Speak through him, O Father Lord. Make him your instrument, O Father Lord. I place Brother Jeffrey also in your hands, O Father Lord. You take control of him, Lord. Let that pillar of fire fall upon this place, O Father Lord. And when we sing and when we praise you, Lord, let it be from the bottom of our hearts, O Father Lord. And I place all the instruments also, Lord. And I ask you, Lord, to take control of all the electric supplies, O Father Lord. And yes, Father Lord, keep us safe. Keep all the disturbance spirit, O Lord, the sleeping spirit, O Lord, far from us, O Lord. And let us be attentive to your word, O Father Lord. And as we have come to hear you, Father Lord, open our spiritual ears, that we may hear you and we may stand for every correction that you give us in your word. And let this meeting be a blessing for each one of us. I make this prayer in the name of our Lord Jesus Christ and His name. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. ये हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। कितने लोग उसके करीब आना चाहते हैं? और वो हमारे करीब पहले आया। हालेलुया। हम तो उसके पास जा नहीं सकते थे, पर वो हमारे पास आकर उसने हमें मुक्ति दिया, एक जिंदगी दी कि हम उसके राह पर चले। हालेलुया। और उसने वो राह पर चलकर दिखाया। हालेलुया। आइए उस गीत को हम गाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से
धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। म्यूजिक है, एक बार उसको धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। यहाँ पर आज हमसे बात करने आए हैं प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु इस दुनिया को छोड़कर सिर्फ तेरी ओर बढ़े, सिर्फ तेरी ओर चले। वो क्रूस ही हमारा निशान है। थैंक यू लॉर्ड जी। आमीन। वो हमारा झंडा है, वो हमारा यहोवा निसी है। आइए, मैंने ग्रुप में सॉन्ग शीट भेजा है, उस गीत उसमें से हम उस गीत को गाएंगे। यहोवा निसी, यहोवा निसी। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हो यहोवा निसी हमारा झंडा हमारे साथ। हालेलुया। आमीन। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। मेरे वाह यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी,
हमें कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। उसके साथ हम चलेंगे, उस नूर में चलेंगे, उस गीत को गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। हालेलुया। आमीन। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे बस चलते चलते नूर में यीशु के साथ। हालेलुया। चलते आऊंगे यीशु के साथ, मैं रहूंगा, मैं पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे बस चलते चलते नूर में यीशु के साथ। हालेलुया। चलते चलते आऊंगे यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, मैं पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि ताकि रोज मदद पाऊंगा, नजया खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मसूल। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते आऊंगे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, मैं पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मेरे पास चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते आऊंगे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, मैं पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। हालेलुया। उसके नूर में हम चलेंगे तो फतेह पाएंगे, विजय पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि किसी और नूर में हम देखेंगे तो हम हार जाएंगे, पर उसके नूर में हम चलते रहेंगे तो फतेह पाते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि फतेह पाने के लिए और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह हमारा झंडा है। हालेलुया। और वो हमारे साथ है, उसमें खुशी और आनंद मनाएंगे। आई एम रिजॉइसिंग नाइट एंड डे एज आई वॉक द नैरो वे। हमारा रास्ता कठिन है, फिर भी प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। आइए खुशी और आनंद मनाते हुए उस गीत को गाएं। आई एम रिजॉइसिंग नाइट एंड डे, ही अबाइड्स। हालेलुया। I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in all my life I see, and the reason of my peace, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. Sabka saath, he abides, he abides, he abides, hallelujah.
तैयार है, उस एलिया के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। आज हमने वो ग्रहण किया है, इसलिए हम यहाँ पर हैं, क्योंकि वो एलिया हमारे लिए भेजा गया है इस आखिरी संदेश को सुनने के लिए। और जो उसको ग्रहण करेगा, हम जानते हैं कि अंतिम दिनों में वो बच जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन है और इस आखिरी दिन में कैसे रहना है एलिया ने हमें सिखाया है। हालेलुया। उस गीत को हम गाएंगे इंग्लिश में। These are the days of Elijah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And he heard the voice of the seventh angel, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and woe, still we are the voice in the desert crying, preparing the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet call, lift your voice, it's year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. We sing the words of Ezekiel, the dry bones becoming express. And these are the days of your servant Elijah, rebuilding the altar of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as white in your word. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet call, lift your voice, it's year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet call, lift your voice, it's year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Out of Zion's hill, salvation comes. Out of Zion's hill, salvation comes. सियोन से वो उद्धार हमें मिला है। हालेलुया। वो एलिया का संदेश हमारे पास आ चुका है। हालेलुया। आगे का समय हम वचन के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। मैं चाहता हूँ ब्रदर फ्रैंकलिन आए आगे। Thank you, Brother Jeffrey, for this lively music and worship. May God bless you. Church with me, we have come to the second part of the service, and
जैसे हम लोग खड़े हैं, हम लोग वो गीत लेंगे, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। और जैसे भाई डैनियल आते हैं प्रचार करने के लिए, हम लोग वो गीत गाएंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, विश्वास करता हूँ सुबह का समय में हम सब आशीषित पाए हैं। हालेलुया। और अभी हम गीत गाए, भूख मिटाता है, प्यास बुझाता है। आमीन। जो भोजन हमने खाया है कितना लोगों को पसंद आया, स्वादिष्ट था या नहीं? कैसा जाना आप लोगों ने उसे, है ना, जुबान से। वैसा वचन कैसा परखा जाएंगे, कैसा टेस्ट करेंगे? कानों से। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जबकि हम खड़े हैं, ऐसा परिचय प्रभु हम सबको दुनिया बनाने से पहला चुना है। आमीन। तो यहाँ हमें हमारा परिचय देना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसने मुझे भेजा है, जिसके थ्रू मैं आया हूँ, हालेलुया, उसका ही पहचान मुझे देना है। आमीन। तो आइए हम आज का अध्ययन जैसा हमने सुबह में सुना उसी अध्याय को हम निकालेंगे। क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्स 13 पढ़िए। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसका 13 वचन। And David said unto Gad, I am in a great strait, let me fall now into the hand of the Lord, for very great are his mercies, but let me not fall into the hand of man. दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पढ़ना न पड़े। और एक दो जगह मुझे और वचन पढ़ना है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 19।
1 Peter chapter 4 verse 19. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as unto a faithful Creator. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। और एक भजन संहिता जो दावीद राजा लिखता है 37 उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 5। Commit thy ways unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आज फिर एक बार आज दोपहर के सेशन में हम तेरे चरणों में आए हैं और ये विश्वास करते हुए जैसा आपने इब्रानियों के किताब में आपने लिखा है कि आप है, ये हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु अगर आप उपस्थित नहीं तो हमारा इकट्ठा होना सब व्यर्थ है, लेकिन आप अपना वादे का पक्का है। आकाश पृथ्वी सब ठल जाएगा लेकिन तेरा वादा कभी ठलेगा नहीं। उस वादे पर विश्वास करते हैं प्रभु कि आप है प्रभु, और इस वक्त हमारी जरूरत आप जानते हैं, हमारा भूख को आप जानते हैं, हमारा प्यास को आप जानते हैं, हमारा इकट्ठा होने का मकसद आप जानते हैं। और जरूर प्रभु जी, हर एक का मनों का विचार भावनाओं को जानने वाला तू एक ही परमेश्वर है। और आज हम तेरे पास आए हैं प्रभु, वो भूख और प्यास से जरूर आप हमें तृप्त करेगा, हमें पूरा विश्वास है। हाँ प्रभु, सुबह में आपने हमसे बातें किया है, बड़े आशीष प्रभु आपने हमें दी है प्रभु। हाँ प्रभु, शैतान बहुत कुछ कर चुका है प्रभु, अभी हमें अधिकार दिया है, हमें बोलना है, स्पीक। हाँ प्रभु, हमें दुहाई नहीं देना है, हमें बात करना है। यस लॉर्ड प्रभु, वो समय आ चुका है जैसा नबी प्रभु फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, थर्ड पुल में आज हम कौन सा परिस्थिति में है प्रभु, वही बात आज तो हम पर प्रकट कर रहे हैं कि अब उसको यहाँ रुकने का चांस ही नहीं है। वो हार चुका है प्रभु। कलवरी क्रूस पर जब आपने बोला इट इज फिनिश, तो उसी दिन आपने सब कुछ प्रभु पूरा कर दिया है, उसको उसका सर को आपने कुचल दिया है प्रभु। और उतना ही ने प्रभु उस मृत्यु पर आप जय पाकर वो पुनरुत्थान का सामर्थ आज तेरा दुल्हन को तूने दिया है प्रभु। जैसा पौल कहता है, मैं किसी भी कीमत पर उस सामर्थ को मैं पाना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, आज इस घड़ी का संदेश के द्वारा वो सामर्थ आपने दिया है प्रभु, केवल हमें उसे हासिल करना है प्रभु और हमें जीना है प्रभु। उस तरह तो अनुग्रह कर और सहायता, क्योंकि वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब तक आप न समझाए कोई इसे समझेंगे नहीं। इसलिए प्रभु उस दिन इन मनुष्य को छुपाकर आप स्वयं दृश्य में आ जाए और अपने आप को आप प्रकट करें। हाँ प्रभु, और इस सभा में जो कोई प्रभु जो जरूरतमंद है, आप सब कुछ जानते हैं, उन्हें देवे विश्वास से हासिल करते हुए तेरी महिमा करने। इस सभा को आदि से अंत तक आप हमारा अच्छा चरवा होकर हमें अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए और सहायता कीजिए। जो परिवार में भाई फ्रैंकलिन का परिवार के लिए हम दुआ करते हैं, जो इस सभा का उन्होंने आयोजन किया है प्रभु, आत्मिक भोजन के साथ प्रभु शारीरिक भोजन का भी उन्होंने प्रबंध किया है, तो जरूर प्रभु आपने कहा है एक गिलास पानी भी देगा तो उसका प्रतिफल वो कभी नहीं खोएगा। ये सब कुछ प्रतिफल के योग्य हम विश्वास करते हैं। उनका परिवार के लिए, उनका सेवा के लिए, उनके काम के लिए, हर बातों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। तेरा आशीष, तेरा बरकत उनके जीवन में। और प्रभु आगे का समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। गीतों के द्वारा हमने आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा की है। नबी कहता है अब हम आए हैं मुख्य आराधना में, वो है आपकी ओर से सुनना। या प्रभु बोल, प्रभु तेरा दास सुनता है। हाँ प्रभु, मुझ मनुष्य को छुपाकर आप स्वयं दृश्य में आ जाए।
मुझ बोलने वाले जुबान, सुनने वाले कानों को तू स्पर्श कर। सराधर महिमा गौरव आप ही को देते। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब बैठेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। सब दुनिया में अपना भारत देश में आज इंडिपेंडेंस बना रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं हम कब इंडिपेंडेंट हुए हैं, हम कब आज़ाद हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि नबी के द्वारा हमें सब कुछ प्रकट किया है कि हम आज़ाद हुए लोग हैं। हम किसी के बंधन में, किसी के गुलाम में हम नहीं हैं। हमें जैसा सुबह में हमने सुना, बस हो गया अभी उसका। हमें हालेलुया। अब हमें करना है, जो कुछ करना है वो हमें करना है। हालेलुया। ये बताना है कि जरूर मैं आज़ाद हूँ करके, मैं किसी के गुलाम में नहीं हूँ करके आज मेरे जीवन से, आपके जीवन से हमें प्रकट करना है। हालेलुया। और जरूर प्रभु प्रकट करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। और हमारा देश को आज़ादी दिलाने में आप सब उस व्यक्ति को जानते हैं, और सबका स्कूल के, कॉलेज के किताब में पहला ही उसका फोटो भी रहता है, या उसका क्या बोलते हैं, उसका प्रेयर रहता है। मैं सभी मेरे भाई बहनों क्या बोलता है, नेशनल प्रेज़ द लॉर्ड, वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, अगर आज नोट भी हम देखते हैं करेंसी में, अगर उसका फोटो नहीं रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वैल्यू कुछ नहीं रहेगा वो नोट का, अगर वो महात्मा गांधी का फोटो उस पर नहीं रहेगा। फिर ऐसा व्यक्ति, जब उसको पहला वो नास्तिक था बोलते हैं, उसका एक किताब मुझे एक मिला था, मैं उसमें पढ़ रहा था। वो कह रहा था मैं नास्तिक था पहला, लेकिन जब मैं बाहर देश में, वेस्टर्न में जब मैं गया, वहाँ पर मैं देखा कि प्रभु के दास लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जो इतना मिशन का काम कर रहे हैं, और जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि यीशु मसीह कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह के बारे में वो कुछ पॉइंट बोलता है, उसको मैं शॉर्ट थोड़ा संक्षिप्त में लिख के लिया, क्योंकि आज पूरा देश में महात्मा गांधी का ही पूरा ये करते हैं कि उसने आज़ादी दिलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हिंसा से आज़ादी नहीं दिलाया, अहिंसा से उसने क्या किया है, आज़ादी दिलाया। और वो बोलता है मुझे अहिंसा मुझे परमेश्वर का वचन से मिला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसका तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो बाइबल के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा है, वो मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसका पहला पॉइंट ये है, वो एक ऐसा मनुष्य है जो भारत को स्वतंत्रता का बड़ा योगदान दिया, और ये एक ऐसा मनुष्य जिनको दुनिया भर में लोग जानते हैं, पूरा दुनिया में महात्मा गांधी को जानते हैं। एक ऐसा मनुष्य जिसके कहने पर भारत के लोग सुनते हैं और मानते हैं, बराबर है? ऐसा मनुष्य जिसके फोटो नोट पर न हो तो देश की अर्थव्यवस्था थम जाएगी, जिसका फोटो न होने पर उस पैसों की कीमत 0 हो जाएगी, बराबर है? वो प्रभु के विषय में यह कहता है कि एक समय में मैं नास्तिक था, जब मैंने बाइबल नहीं पढ़ा था और क्रिश्चियन धर्म के नबियों के संपर्क में नहीं आया था, तब मेरा यही समझ था। जब तक वो उन नबियों के, उन दासों के संपर्क में नहीं आया, बाइबल जब उनको पता नहीं चला, तब तक वो नास्तिक ही था। लेकिन जब ये पता चला तो
उसने जब ये पढ़ा और उसमें से उसको एक इंस्पिरेशन जो मिला, वो आगे लिखता है, मैं हिंदुस्तानियों की सेवा में तल्लीन हो गया। वो पढ़ने के द्वारा उसको ये भारत का सेवा करने में वो तल्लीन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका कारण सिर्फ आत्मदर्शन की अभिलाषा थी उसके अंदर, और परमेश्वर की पहचान सेवा से हो सकता है। परमेश्वर का पहचान कैसा हो सकता है? सेवा करने से हो सकता है। ऐसा समझकर मैंने सेवा धर्म का स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु को परमेश्वर प्रसूत पुत्र मानता हूँ। यीशु को क्या मानता है? परमेश्वर का प्रसूत पुत्र मानता है, और उसके उपदेशों का, वचनों का मेरे जीवन पर बहुत ही प्रभाव डाला है। और प्रभु यीशु परमेश्वर के सर्वाधिक नजदीक थे। जैसा निकोदेमुस ने बोलता है कि अगर परमेश्वर तेरे साथ न होता तो ये कार्य नहीं करता। लेकिन गांधी जी ने भी देखा कि यीशु मसीह का जीवन क्या था, और उसने देखा यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर को ही दर्शाता था। मतलब वो बोल रहा है कि परमेश्वर के सर्वाधिक नजदीक उसका संबंध था, बोलते हैं यीशु का। क्योंकि वो लोग यीशु को प्रभु करके नहीं मानते, एक उसको प्रभु का एक भविष्यद्वक्ता करके या प्रभु का एक दास करके मानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वो कौन है। हालेलुया। लेकिन वो ये पहचाना कि वो कितना परमेश्वर के करीब है, मतलब परमेश्वर उसके अंदर कितना पहचान दे रहा है, ये यीशु का शरीर पे जब था उस समय प्रकट हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो यीशु आज कहाँ पर है? आज वो यीशु कहाँ पर है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ इधर सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपना हाथ बता सकते हैं? हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद। तो हमने किसको पहना है? फिर कौन दिखना है? यीशु ही दिखना है। हमें यीशु का ही पहचान आज हमारा जीवन से मैनिफेस्ट होती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे भी वो कहता है, और जो लोग उनके उपदेश का स्वीकार करते थे उनका पापों की मुक्ति के लिए यीशु ने खुद को क्रूस पर बलि हुआ करके बोलते हैं। ये गांधी जी का शब्द है, उसका किताब में से मैं कुछ पॉइंट लिख कर रखा। परंतु जिस तरह, अभी आगे बोलता है, जिस तरह सोना आग की भट्टी में ताया जाता है ताकि उसका मूल दोष निकल जाए, वैसे ही इस दिशा में नए सिरे से आए तो मूल दोष नष्ट हो जाएगा। अगर हम नया जन्म लेते हैं तो हमारा जो दोष है, जो भी हमारे ऊपर कलंक है, जो भी पाप में हमारा जन्म हुआ था, जब हम नया जन्म लेते हैं वो सब नष्ट हो जाता है, निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पाया। आमीन। हालेलुया। अभी आगे लिखता है वो, मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, तब उसकी उपस्थिति का तेज प्रकाश मुझे यह अनुभव दे रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं न केवल आत्मदमन, उपवास और प्रार्थना करूँ, बल्कि जो सृष्टिकर्ता की उसके मांडी पर बैठकर, क्या बोलते हैं उसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैब पर बैठकर, जैसा यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के मांडी पर बैठकर वो सुनता था, उसके ऊपर सोता था। वो बोलता है कि मैं मांडी पर अपना जो भी मेरा चिंताग्रस्त सर मैं उसके मांडी पर रखता, और यह आकांक्षा इन बातों से व्यक्त होती है कि इसका मूल्य अनंत है। मतलब प्रार्थना और उपवास का मूल्य क्या है? बोलता है अनंत है। इसलिए पौल बोलता नहीं कि निरंतर क्या करो? प्रार्थना में रहो। प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता है
हाँ, लूक चैप्टर 18 वर्स 8 पढ़ेंगे थोड़ा एक बार। लूक चैप्टर 18 वर्स 1। And he spake a parable unto them, हाँ, this end, that men ought always to pray and not to faint. saying, पहला वचन पढ़ा। हाँ, एक मिनट हिंदी में पढ़िए। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, और हिवाय न छोड़ना। उनसे यह दृष्टांत कहा। प्रभु ने एक दृष्टांत दिया, और दृष्टांत क्या दिया? एक विधवा उसके पास बार बार आकर क्या करती थी? विनती करती थी, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। तो आगे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तो मेरे बच्चे रात दिन मेरा दुहाई करते हैं, तो क्या मैं उनका न्याय नहीं करूंगा? हालेलुया। लेकिन जो रात दिन प्रार्थना करते हैं, उसका मन उसे गवाही देता है कि मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब वो देता है। एक राजा, एक अधर्मी न्यायी उस विधवा का न्याय करता है, तो हमारा जिंदा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। फिर वो हमारा प्रार्थना रात दिन हम पुकारते हैं, तो क्या वो सुनेगा नहीं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जरूर वो प्रार्थना सुनने वाला खुदा। आज मैं थोड़ा प्रार्थना के ऊपर ट्रेस दूंगा, अगर क्योंकि प्रार्थना, प्रेयर चेंजेस द थिंग्स हम बोलते हैं। हालेलुया। हाँ, जरूर प्रार्थना में इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, एक बार हमें अनुभव करना है। हालेलुया। जब आप अनुभव करेंगे, आप उसके इतना करीब रहेंगे, आप नित्य उससे बात करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कितना हो गया। इसलिए दावीद राजा भी, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सुबह आप लोग सब नाश्ता किए थे? हाँ, किए ना? अच्छा, आप लोग नहीं किए तो आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं। ओके, फिर बाद में हमने दोपहर को भी खाना खाया है ना? फिर शाम को खाने वाले हैं या नहीं खाने वाले? क्या फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे? हाँ, खाएंगे ना? तो ऐसा कितना बार हो गया ये? सुबह, ये हमारा आदत है कि नहीं? वो आदत है कि नहीं हमें, कि हमें वो खाना ही है? वैसा ही दावीद राजा 3 बार प्रार्थना करता है। सैम्स 55 वर्स 17 आप पढ़ेंगे। भोर को, हाँ, दोपहर को और सांझ को। हालेलुया। कितना बार प्रार्थना करता है? उसका ये आदत ही था, वो प्रार्थना का उसका आदत ही था। जैसा हमें खाने का आदत है, तो आज हमें यह भी कर लेना है कि प्रार्थना का आदत हम कर लेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना सब कुछ बदल सकता है। प्रार्थना में उतना क्या बोलता है, शक्ति है। हालेलुया। हम बाइबल में कितना तो बार हमने सुने हैं, पढ़े भी है ना? हिजकिय्याह राजा को बोला तू मर जाएगा, लेकिन उसने दीवार की ओर फेर कर उसने प्रभु से सिर्फ प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया? मैं सच्चाई से, खराई से मैं चला हूँ। हालेलुया। तब उसका प्रार्थना सुना, नबी को भेजा, या उसको बोल दे। क्या बोला? 15 साल क्या बदल दिया उसका, जबकि वो बीमार मरने वाला था। क्या बदल दिया उसको? उसका प्रार्थना, उसका सच्चाई। हालेलुया। जो सच्चाई हम सब जानते हैं, आज आपके पास, मेरे पास, सुबह में भाई ने बताया कि हमारे पास सच्चाई आज जो है प्रकट रूप में है, रिवील्ड रूप में है। पहला तो वो सच्चाई, हाँ, पवित्र आत्मा आने के बाद ही समझाता था, लेकिन पवित्र आत्मा ऑलरेडी आकर आज हमें नबी के द्वारा सब कुछ खुला किया है। तो एक वचन पढ़ेगा तो हमें पता चलेगा कि आज जो अपना देश आजाद है, तो हम कब आजाद होते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। आठ अध्याय उसका 32 वचन। जॉन चैप्टर 8 And ye shall know the truth, And he shall know the truth, and the truth shall set you free. and the truth shall set you free. Yes. तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है?
सत्य क्या है? जॉन चैप्टर 17:17। हाँ, जॉन चैप्टर 17:17। Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Thy word is truth. हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा जब सत्य तुम्हें मिलता है तुम पवित्र भी हो जाते हो। हालेलुया। क्योंकि लेकिन उसे स्वीकार करना है। स्वीकार करना है मतलब उसका पालन हमें करना है। जब तक हम पालन नहीं करते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होगा कि मैं पवित्र हूँ करके। हालेलुया। बोलने से नहीं होता है, हमारा क्रिया बताता है कि मैं क्या हूँ, फल बताता है कि क्या है। हालेलुया। हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। हमें क्या है? कौन है वचन? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वही वचन हम सब के पापों के लिए देह बनकर आया और उस कलवरी क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए कीमत चुकाया। उसने कीमत चुकाया आपके लिए मेरे लिए। फिर हम किसके हैं अभी? उसके। हम नहीं बोल सकते मैं मेरा हूं करके, क्योंकि उसने खरीदा है। फिर मैं किसका होना चाहिए? उसका अधिकार मेरे ऊपर होना। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे खरीदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सब समझते हैं कि उसने आपको मुझको खरीदा है तो अब मैं नहीं रहना चाहिए। हाँ, वो देखना चाहिए। पौलुस बोलता नहीं, अब मैं नहीं रहा बल्कि वो मुझ में जी रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें सत्य जब मिला हम आज़ाद हुए। हालेलुया। वैसा आत्मिक तौर में भी जब सत्य वचन, जब प्रभु यीशु में मसीह हम सब के जीवन में आया, हम किसी के बंधन में नहीं, ना ही शैतान के बंधन में हम आए, लेकिन वो है हमारे पीछे रहेगा। ही प्रभु उसको अनुमति देता है। योग के जीवन में अनुमति दिया है, वो इसलिए दिया है उसको परफेक्ट बनाना चाहता है, एक सिद्ध बनाना चाहता है। वैसा आपको और मुझको भी सिद्ध बनाने के लिए वो टूल को उपयोग करता है। कौन है वो टूल? शैतान। उसको उपयोग करता है। पौलुस को उपयोग नहीं किया। पौलुस बोलता नहीं, शैतान के द्वारा प्रभु ने मुझ में क्या डाला है? एक कांटा डाला है। किसके द्वारा? प्रभु उसको लेकिन प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। आमीन। जैसा सुबह में हमने देखा, दाऊद राजा दोषी पाया गया, लेकिन बाद में हम देखते हैं दाऊद राजा बोलता है मैं मनुष्य के हाथ में गिरने से, हाँ, मैं प्रभु के हाथ में हालेलुया। इसलिए अब मैं उस विषय पर आना चाहता हूँ जो भाई ने सुबह में लिया था। अब थोड़ा हम उसके आगे नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा हम सब एक ही आत्मा से भरे हुए हैं, तो हम सब का एक ही मन होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास है हमारा, एक ही आत्मा है। हालेलुया। फिर भाई ने जो प्रचार किया, मैं उससे कोई भिन्न प्रचार करेगा, मैं शापित हूँ, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात मुझे यहाँ प्रेरणा दे रहा है प्रभु कि जब एलिया एलीशा को अभिषेक किया और एलीशा उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं भी, मेरा सीनियर है तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलते अभी यहाँ पर आया। हालेलुया। तो यही आप लोगों को देखना चाहिए, जो आत्मा से प्रभु उनको भरा था वही आत्मा, हाँ, मुझे भी भरना चाहिए। तब पहचान आप लोग पहचानेंगे कि वो एक ही आत्मा है या अलग आत्मा है ना? इसलिए मैं एलिया और एलीशा को, और एलिया के पीछे पीछे चलते गया। मुझे एक वचन वहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो थोड़ा हमें वो उसके द्वारा क्या बोलेगा, हमें एनकरेज होएगा, हमारा विश्वास बढ़ने के लिए प्रभु अनुग्रह करेगा। मेरे ख्याल से दूसरा राजा
वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। आमीन। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। And when the sons of prophets which were to view at Jericho saw him, they said, The spirit of Elijah doth rest on Elisha. And they came to meet him and bowed themselves to the ground before him. उसे देखकर परिशुद्धताओं के चेले जो एलियो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। वही किस पर ठहर गया है? एलीशा पर ठहर गया। हमारा प्रॉफिट के अंदर किसका आत्मा था? किसका आत्मा था? फिर सुबह जो भाई ने बात किया वो किसका आत्मा था? किसका संदेश था? फिर अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ अलग आत्मा है? वही आत्मा है। वहाँ के जो चेले लोग ने पहचाना कि एलीशा में किसका आत्मा है। कैसा पहचाना वो लोग ने? वो सब एलिया के जैसा ही उनको दिखाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर इस अंतिम दिनों में फिर यीशु मसीह जब इस दुनिया में था और चला जाने के बाद शिष्यों के ऊपर उसका आत्मा उतर कर आया, तो उनको भी लोगों ने कैसा पहचाना वो बात को भी हम देखेंगे। प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और वो जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, ये अनपढ़ है, इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, एकदम साधारण है, हाँ, तो आश्चर्य किया। तो आश्चर्य किए। फिर उनको पहचाना, फिर उनको पहचाना। कैसा पहचाना? हाँ, कि ये यीशु के साथ रहे। किसके साथ रहे? हालेलुया। फिर आज हमारा पहचान कैसा होना है? किसके साथ हम है? भाई ब्रैनम किसके साथ थे? बहुत लोग हमको ब्रैनमाइट करके वे लोग मनुष्य के पीछे चल रहे करके बोलते हैं। हालेलुया। और नबी स्वयं बोलता है, डोंट फॉलो द मैसेंजर, फॉलो द मैसेज। हालेलुया। व्यक्ति के पीछे मत चलो, व्यक्ति के द्वारा जो वॉइस ऑफ गॉड आया है उसके मुख के द्वारा उसका तुम फॉलो करे करके बोल रहा है। हालेलुया। फिर आज हम किसका फॉलो कर रहे हैं? जैसे भाई ने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया, और मैं विश्वास करता हूँ हम सब बहुत आशीष पाए सुबह। और इट इज डबल पोर्शन। अगर आप लेंगे अलीशा के जैसा, है ना, तभी तो अलीशा को पहचाना, क्योंकि अलीशा वो पोर्शन उसने मांगा, मुझे चाहिए। अगर आप मांगेगा आपको भी मिलेगा। आप मांगते ही नहीं। देखते हैं ये कैसा बात करता है। हाँ, जो नबी बोलता है, जो सोच से आते हैं वो वही बात कर जाते हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु का वचन सुनने आए, वॉइस ऑफ गॉड सुनने आए, तो आपको प्रभु आपसे बात करें, क्योंकि हम वो प्रार्थना करते हैं। और इस सभा के लिए भी कितने 1 महीना से प्रार्थना कर, भाई ने मुझे 1 महीना पहले ही बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु का ये योजना प्लान था और आज वो प्रभु फुलफिल कर रहे हैं। आमीन। उतना ही नहीं, प्रभु आपको मुझको सबको बुलाया है, लेकिन उसने कब चुना हमको? हाँ? फिर कब बुलाया? जिनको पहले ठहराया उनको ही बुलाया, क्योंकि वही लोग विश्वास करेगा, सब लोग विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। और उनको धर्मी ठहराया, उनका महिमा भी किया।
जो मकसद के लिए प्रभु आपको मुझको बुलाया है वो पूरा करता है। हालेलुया। हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है उसके हाथ में, सब कुछ करने धरने वाला सब वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ हमें उसके हाथ में होना है। दाऊद राजा बोला अभी वो गुनाहों में पकड़ गया हो, प्रभु के विरुद्ध उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नबी के द्वारा ही उसको, गाद नबी के द्वारा ही उसको बोला कि तूने गलती की। वो कबूल किया, फिर बोला नहीं, मैं मनुष्य के हाथों में गिरने से अच्छा मैं प्रभु के हाथ में मैं गिरूं। हालेलुया। हाँ, नबी बोलता है कि मनुष्य गलती से भरा हुआ है, गलती होता है। हालेलुया। लेकिन जब हम उस गलती को हम कबूल करते हैं, प्रभु जरूर क्षमा करता है। लेकिन हमें प्रभु के हाथ में सौंप देना है, उसके हाथ में हम गिर जाते हैं। दूसरे के हाथों में गिरने से अच्छा उसके हाथों में हमें गिर जाना है, जैसा दाऊद राजा कहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा शिष्यों को पहचाना कि ये लोग किसके साथ थे, बोलते हैं यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। और एक वचन जहां उनको पहली बार सच में मसीह कहलाए, अंतियोक। गॉड ब्लेस यू। पढ़ेंगे उसको, चैप्टर 11, वही एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 26। जब वो उससे मिला तो उसे अंतिकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते, हाँ, और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंतिकिया ही में मसीह सबसे पहले कहाँ पर? अंतिकिया में ही क्या कहलाए? मसीह ही कहलाए। मसीह का अर्थ अनॉइंटेड वन, अभिषेक। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मसीह कहलाए? क्यों मसीह कहलाए? क्योंकि ही इज अनॉइंटेड। और हम सब जानते हैं जब यीशु मसीह पानी में से बाहर आया, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर आया। वो पूरा अनॉइंट किया उसको पूरा, मतलब ये आपको वो वचन पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मसीह में क्या है। हालेलुया। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इंग्लिश में पढ़िए उसको। For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. आमीन। मराठी में पढ़िए। कारण ख्रिस्ताच्या ठाई इन हिम, तो कौन है? वो मसीह है। हालेलुया। मसीह में क्या है? बोलता है परमेश्वरत्व का सारी परिपूर्णता वास करता है। तो चेलों को वहां पहली बार मसीह कहलाए तो उनमें कौन दिख रहा था? साक्षात यीशु मसीह दिख रहा था। फिर आज नबी बोलता है कि परमेश्वरत्व का सारी परिपूर्णता मसीह में है, और मसीह आज कहां पर है? उसका कलीसिया में है, उसका दुल्हन में आज है। हालेलुया। तो आज दुल्हन इसलिए क्योंकि प्रभु इस अंतिम दिनों में नबी हमें बताता है कि कलीसिया में से प्रभु आज दुल्हन को बाहर निकाला है। हालेलुया। उसने दुल्हन को चुना है, क्योंकि दुल्हन ही क्या होना है? वचन रूपी दुल्हन होना है। हालेलुया। डिनोमिनेशन, बाकी चर्चेस वो पूरा वचन नहीं हो सकता है, इसलिए प्रभु का सिर्फ दुल्हन ही जो कलीसिया कहलाता है उसका पत्नी कहलाता है, और पत्नी का जो सर है वो मसीह है। कलीसिया का सर कौन है? वो मसीह है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोग? प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करो कि भाई प्रभु जो भाई खड़ा है उसके मुख के द्वारा हमें समझ आए, ऐसा तो हमसे बात कर। हालेलुया। और जरूर प्रभु बात करता है हमें।
तो मसीह जो पहली बार अंतकिया में कहलाए, उनको और कोई नहीं दिख रहे थे, सिर्फ साक्षात प्रभु यीशु मसीह ही वहां पर दिख रहे थे। हालेलुया। उतना ही नहीं, जब पौलुस और बरनबास या सीलास जब वो कौन सा एक देश में जब वो लोग प्रचार कर रहे थे, तो इतना अद्भुत काम हो रहा था। वहां पर एक जन्म का लंगड़ा, जब प्रभु पौलुस ने देखा कि उसको चंगा होने का विश्वास है, तो पौलुस ने प्रचार करते हुए बोला, उठ खड़ा हो अपने पैरों पर। हालेलुया। तो लोगों ने देखा, अरे साक्षात प्रभु जो है मनुष्यों में उतर आया है, मनुष्य के रूप में देवता उतर कर आया करके। तो वो लोग ने उसको, उनको हार क्या 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 डालने के लिए लाया, तो वो लोग बोला, नहीं, हम भी आप लोग के सब जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग हैं मेरे साथ? थैंक यू लॉर्ड। तो पहली बार हम देखते हैं कि वहाँ मसीह कहलाए, और मसीह में परमेश्वरत्व का सारी परिपूर्णता वास करती है। आज वो सारी मसीह जो है, आज उसका दुल्हन में वास करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। क्या आप इस बात से खुश नहीं है? आप, हमारा जो दूल्हा है वो आपके साथ, मेरे साथ शादी का ये किया है। पौलुस ने हमारा रिश्ता क्या बोलते हैं, सगाई किया है, एंगेजमेंट किया है। कैसा? एक पवित्र कुंवारी की नहीं, एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाए करके। हालेलुया। वो पुरुष और कोई नहीं, मेरा मसीह है, जिसमें सारी परिपूर्णता वास करती है। फिर उसका सारा परिपूर्णता आज उसका कलीसिया में, उसका दुल्हन में वास करती है। तो दुल्हन में से वो फल प्रकट होना है आज। हालेलुया। खाली हम बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब हम क्रिया में जाते हैं तो तब प्रकट होता है कि सच में मुझ में मसीह है या नहीं। हालेलुया। बोलने के लिए आसान है, लेकिन जीना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 10:8 में लिखता है, प्रकाशित वाक्य 10:8 में लिखता है, देखो, जैसा भाई ने सुबह बताया, हमारे पास खुला हुआ किताब है। कौन सा किताब है ये खुला हुआ? जो दानियल के समय में प्रभु ने दर्शन दिया था, वो अंत के समय के लिए बंद करके रख बोला कि कब वो खुल गया हम सब जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो किताब क्या बोल रहे हैं आज आपको, मुझको? पढ़िए। And the voice which I heard from the heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel, which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up. Amen. Take it and eat it up. Eat it up. हिंदी में पढ़िए। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, स्वर्ग से बोलते सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक, कौन सा खुली हुई पुस्तक है? जो प्रकाशित वाक्य 5 में अंदर से बाहर से क्या है, सील किया हुआ है। फिर वो खुला है, 6 चैप्टर में आता है तो खुलते जाता है। फिर 10th में वही किताब लेकर प्रेज़ द लॉर्ड वरिष्ठ स्वर्गदूत उतर कर आता है और अपना नबी को देता है। हालेलुया। और फिर बाद में क्या बोलता है, 8वां वचन में अभी हमने पढ़ा कि इसे खा। किसको बोल रहे खाने के लिए? आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। दुल्हन को खाने के लिए बोल रहे हैं। आज दुल्हन वो खा रहा है, वो क्या है? वो किताब, रिडेम्पशन, करेक्ट, गॉड ब्लेस यू। वो हमारा छुटकारे का किताब है। हालेलुया। और वो किताब आज आपको और मुझको खाने के लिए बोल रहा है। फिर अगर हम वो खा रहे हैं, हालेलुया, खा रहे हैं नहीं? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी हूँ। स्वर्ग से उतरा हुआ। ये किताब भी किधर से आया है? स्वर्ग से आया है। ये और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो जीवन का वृक्ष कहलाया गया है। जो जय पाएगा, पहला कलीसिया को बोलता है, तो जीवन का वृक्ष में से फल खाने को दूंगा। और वो फल आज हम, आप और मैं खा रहे हैं, ताकि हम भी वचन बने।
हालेलुया, क्योंकि वो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है, उसमें से हम खा रहे हैं। हालेलुया। फिर आज दुल्हन भी क्या बनने वाला है? वही वृक्ष बनने वाला है, जीवन का वृक्ष, दुल्हन, वचन रूपी दुल्हन। हालेलुया। वो वचन रूपी दुल्हा है, हम वचन रूपी दुल्हन है। हालेलुया। इसलिए चेलों लोग को पहचाना, ये तो मसीही है। फिर आज आपको मुझको भी, हाँ, हमारा बहन लोगों को जल्दी पहचान लेते हैं और उनको सवाल भी करते हैं, आप ऐसा क्यों है? आप जो उम्र में बड़े दिखते हैं, आपका पति मर गया है क्या? है ना? उस समय हमारा गवाह प्रकट होता है। हालेलुया। मैं कौन हूँ? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवित गवाह प्रभु आप नहीं बात करते हैं, आपका जीवन वहां पर बात करता है। हालेलुया। हमें बोलने की जरूरी नहीं, हमारा जीवन गवाही देता है। नबी बोलता है ना, मेरा बोलने से ज्यादा मेरा जीवन बात करता है, इतना जोर से बात करता है। हालेलुया। कि ऐसा ही दिखाई देगा, अरे तो मसीह है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सारा मसीह जो है, जो सारा परिपूर्णता जिसमें वास करता है, आज उसका दुल्हन में वो वास करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसा दाऊद राजा, मैं फिर एक बार वहाँ पर अब विषय की ओर आना चाहता हूँ और मैं विषय को नाम देना चाहता हूँ, कमिट योर वेज टू लॉर्ड। तुम्हारा जो मार्ग है, मैं मार्ग बोलने से अच्छा, तुम्हारा जो भी टेंशन है, दाऊद राजा संकट में पड़ गया ना, टेंशन में आ गया, फिर उसने क्या बोला? मैं अपने आप को मैं प्रभु के हाथ सौंप देता हूँ, उसके हाथ में पड़ जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा दाऊद राजा सैम्स में लिखता है 37:5 में जो हमने पढ़ा, कमिट दाई वे अनटू द लॉर्ड, ट्रस्ट ऑल्सो इन हिम एंड ही शैल ब्रिंग इट टू पास। और जब हम अपने आप को उसके अधीन हो जाते हैं और जो भी वो काम पूरा होना है वो प्रभु पूरा करता है, अगर हमारा भरोसा उस पर है। आमीन। उसके लिए नबी का एक संदेश में से ए टाइम ऑफ डिसीजन, इस संदेश में से पैरा 12 में वो कहता है कि वो एक उदाहरण देता है नबी इस वचन को लेकर कि कैसे हम उस पर निर्भर होना है। अब हम देखते हैं कि एलिएज़र ने एक फैसला किया था, हालांकि वो एक भला सज्जन था, वो एक बड़े कार्य को अंजाम देने के लिए निकला हुआ था, एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए निकला। क्या था वो बड़ा काम? हम सब जानते हैं। आज जवान भाई बहन बैठे यहाँ पर, हालेलुया, आकाश हंस रहा है, शायद नंबर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कैसा चुनना है, दुल्हन को चुनना या दूल्हा को चुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए अगर वो बात भी आता है, बहुत से बात है, बहुत से ऐसा चिंता हो या हम जो भी सोचते हैं वो सब हमें प्रभु के हाथ में जब हम सौंप देंगे वो उसको पूरा करता है। लेकिन हमारा भरोसा उस पर होना, और जिसका भरोसा उस पर रहेगा वो जरूर उसके हाथ में सौंपेगा। वो पूरा किया है। इट इज फिनिश्ड, इट इज ऑलरेडी फिनिश्ड। उसने कर चुका है, लेकिन वो समय आएगा तुम्हारा जीवन में प्रकट। हम बोलते हैं ना, हम दुनिया बनाने से पहला हमने उद्धार पाया है, लेकिन हम बोलते हैं हमने कब उद्धार पाया? मैं बोलूंगा मैं 20 साल पहला मैंने उद्धार पाया। ये उस समय में प्रकट किया मुझे प्रभु ने कि तू पहले उद्धार पाया है, लेकिन इस दिन प्रकट हुआ। वैसा अभी हर्षद गया इसी साल में, क्या गया साल में बपतिस्मा लिया, पिछला साल में ना, हाँ, हालेलुया। लेकिन वो पहले से उद्धार पाया है, पहले से ही उन्होंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन ये समय था उसका कि वो प्रकट हम सबके जीवन में, हालेलुया, वो समय प्रभु ने ठहराया है।
लेकिन एक विश्वास हमें होना जरूरी है, हम सब मसीह में पहले से थे और उन्हीं को प्रभु बुलाया है और वही आएंगे, वही विश्वास करेंगे, सब लोग विश्वास नहीं करेंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो नबी एलियाजर का उदाहरण देकर बात कर रहा है। वो एक काम को अंजाम, उसको अब्राहम ने उसको एक काम दिया था कि उसका बेटे के लिए, हाँ बोलो जवान लोग बोलो, हाँ ब्राइड, करेक्ट, ब्राइड को लेके आना। लेकिन कहाँ से लेके आना? हाँ, तो आत्मिक तौर पर विश्वासी होना चाहिए। हम बोलते हैं बाद में, हम उसको मैं लाऊंगा विश्वास में, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो हमारा सोच है। लेकिन प्रभु ने जो हमें आज्ञा दिया है, विश्वासी के साथ ही शादी करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एलियाजर को बड़ा काम दिया और हाँ, ये बड़ा काम ही है। और उतने ने बाइबल में लिखा है, विवाह जो है इट इज़ ऑनरेबल, और ये पवित्र विधि है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य को सृष्टि किया, पहला शादी उसने आदम का बाग में किया, फिर अब हमारा शादी होने वाला है रेवलेशन चैप्टर 19 में, शादी के द्वारा ही समाप्त होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इसलिए शादी का बहुत बड़ा अंजाम है करके बोलते हैं, नबी बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो उसके अंजाम देने के लिए निकला उस बड़ा कार्य को, और लेकिन कैसा अंजाम देने निकला वो हम देखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका बल से, उसका शक्ति से, उसका बुद्धि से, उसका सोच से नहीं, उसने क्या किया है, हम उसका उत्पत्ति का 24 अध्याय अब बाद में घर में पढ़ लो। मैं समय बचाने के लिए, मेरा कितना बजे तक टाइम आ गया? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे 10 मिनट भी देगा, मैं 10 मिनट भी बात करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमें समय को बहुत बहुमूल्य जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग हैं मेरे साथ? जाएंगे आगे थोड़ा, आप प्रार्थना करेंगे, जैसा पौल बोलते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि उसका सत्य वचन में धैर्य से मैं प्रकट कर सकूं। मैं कोई महान प्रचारक नहीं, मैं फिर एक बार बताऊं, मैं आप लोग के जैसा ही एक साधारण व्यक्ति हूँ। वैसा वचन में देखा जाए, गिदोन बोलता है, मैं सबसे छोटा जात वाला हूँ, सब में कंगाल भी हूँ करके बोलता है कि नहीं? देखो उस वचन को पढ़ो, थोड़ा आप लोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन प्रभु क्या कहता है? गिदोन तो कहता है, लेकिन प्रभु क्या कहता है? वो प्रभु आज भी है ना, वो आज भी हमसे वैसे ही बात करेगा। पढ़ेंगे हम। थैंक यू। चैप्टर 6, जजेस चैप्टर 6, न्यायियों का 6 अध्याय, न्यायियों का 6 अध्याय, उसका 15 वचन एक बार। आज सुबह में हमने ये भी सुना कि लोग हमें कुछ भी कहते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ा देते, हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा ध्यान जिसने पुकारा बुलाया आपको, कोई मनुष्य, कोई पास्टर ने नहीं बुलाया। और एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप कितना बड़ा पास्टर का सुनते होगे, कितना बड़ा चर्च में जाते होगे, प्रभु वो नहीं पूछने होते। प्रभु क्या पूछने होते? तुम मेरा वचन का पालन करते हो या नहीं? प्रभु को ये नहीं पूछेगा कौन सा चर्च में जा रहे थे, सही बात है ना? हालेलुया, वो ये पूछेगा मेरा वचन का पालन कर रहा है या नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ गिदोन डर है ना, ऐसा देखा जाए तो उसको डरपोक ही बोलेंगे,
घर के पिछवाड़े में दाखरस के कुंड में गऊ फटकार रहा था, क्योंकि मिद्यानियों का डर से, क्योंकि वो लोग सब उनका खेत बात सब चुरा के लेकर जा रहे थे, लूट कर लेके जा रहे थे। तो ऐसा समय में ये डर कर घर के पिछवाड़े में दाखरस के कुंड में गऊ को फटकार रहा था, तब दूत उसके पास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप क्या है या आप कौन है शायद हम ये अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हमारा नजरिया, हमारा सोच, हमारा देखना ये बहुत छोटा है, इसलिए हम छोटे समझते हैं, बराबर है। इसलिए हमारा सोच भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। और दूसरी बात, लोग हमें कम समझते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और तीसरी बात, हमारा खुदा जो है हम सबको दूसरों से भी बेहतर तरीके से वो हमको अच्छी तरह जानता है। हालेलुया। कभी कभी हम अपने सोच के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए सीमित हो रह जाते हैं। मैं समझ में आ रही है बात? अभी पढ़िए उस वचन को, जजेस चैप्टर 6 इसका 15 वचन पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? मैं कैसे छुड़ाऊंगा उसको? देख, मेरा कुल मनुष्यों में सबसे कंगाल है। मेरा कुल मनुष्य में सबसे क्या बोलेगा, कंगाल, दरिद्र है। हाँ, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा भी हूँ मैं। हाँ, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। आप अपने आप को, अपना सोच को छोटा मत करो। वो सृष्टिकर्ता हमारे संग है, तो हमारा सोच को बढ़ाओ। हालेलुया। कि हम कौन है? हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हाँ, राज पदधारी याजक वंश के पवित्र जन है हम ये भूल जाते हैं। और लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, वो सोचते हैं नहीं, वो सोचेगा तो वो इधर ही सोचते रहेंगे। वो सोच से हमें बाहर आना है और प्रभु का सोच में हमें आना है। उसका सोच ये है, उसका सोच है। हालेलुया। उसको हमें फॉलो करना है। आमीन। या सब में छोटा हूँ, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को जैसा मार देते हैं वैसा तू मार देगा। तू छोटा मत समझ, अपना सोच को छोटा मत कर। जितना तू सोचेगा छोटा, उतना तू बौना हो जाएगा। बौना का मतलब मालूम क्या बोलते? बौना को जक्का कैसा था? हाँ, नाटा था, है ना। वो उसका सोच उतना था करके वो नाटा था, लेकिन बाद में हम देखते हैं क्या सोच उसने प्रकट किया। सोच बड़ा किया, नहीं, मेरा सृष्टिकर्ता को मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब वो सृष्टिकर्ता देखा, वो मुझे देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया है, क्योंकि उसका सोच छोटा था, जब पौधा था नहीं देख सकते, इसलिए सोच बड़ा किया, पेड़ पे जाके चढ़ गया। सोच बड़ा करो, ऊंचा करो, तब प्रभु साफ दिखाई दिया। उसको साफ दिखाई दिया और प्रभु भी देखा उसका मन को, अरे ये मुझे देख रहा है, चलो आज उसके ही घर में जाएंगे। नहीं चलो, जब गए झट उतरा, आज मुझे तेरे घर आना है। हालेलुया। आज भी आपको पुकार रहा है, सोच को बड़ा करो। प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा दर्शन मैं पाना चाहता हूँ। प्रभु आपको आवाज दे और कहेगा, खोल दरवाजा, मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्योंकि आखिरी कलीसिया काल में उसको बाहर रखा है सब, और वो इसलिए दरवाजा खटखटा रहा है। कोई खोलेगा, वो बोलते हैं मैं भीतर रहूंगा करके। और क्या करेगा? भोजन, वही खुला हुआ किताब आपको और मुझको खाने को दे रहा है, और वो खाएगा, हम भी वैसा ही बनेंगे। जब तक हम खाएंगे नहीं होगा, हमें खाना है। और जब खाते जाएंगे देखो
आपको ऐसा टेस्ट लगेगा, आपको छोड़ने को दिल नहीं करेगा, ऐसा टेस्ट है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा सोच अगर छोटा है तो हमें छोटा बना देता है, और ऐसा कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। अब देखो, खुदा ने गिदोन को, वो कहाँ पर था? दाखरस के कुंड में था, उधर से पहला उसको बाहर निकाला। हम भी डरते थे, है ना, डरते मतलब हम भी दाखरस के कुंड में थे, फिर पहला प्रभु ने आपको आवाज दी, जग गए चटा, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बाद में उसने गिदोन का हीन भावनाओं को आजाद किया, उसका जो मन उसको खा रहा था कि मैं छोटा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं कंगाल हूँ, मैं ऐसा जब बोला, वो भावनाओं से उसको पहला प्रभु ने बाहर निकाला। निकालने के साथ फिर क्या बोला उसको? 13वां वचन पढ़िए। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता, हाँ, तो हम पर 13 हाँ 13 पर 13 हाँ पढ़िए। यदि यहोवा हमारा संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, हाँ, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? हाँ, वे कहाँ है? वे कहाँ है? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। तब वो कौन सा वचन में कहता है कि तू, हाँ ओके 12, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा। जबकि वो कहाँ पर डर कर कहाँ पर था? घर के पिछवाड़े में दाखरस के कुंड में था, उसको वहां से बाहर निकाला। वो इतना डरा हुआ, इतना कंगाल, इतना छोटा है करके सोचा, लेकिन प्रभु उसको क्या, कौन सा नजर से देख रहा है और क्या पुकार रहा है? माइटी मैन ऑफ, हालेलुया, वेरी गुड। हे शूरवीर सूरमा। आज हम ऐसा सोचते होंगे यहाँ बैठे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन जब प्रभु देखता है आपको, आप में कुछ अलग ही देखता है। शाऊल ने गोलियत को देखा, हाँ, प्रभु ने डेविड को देखा। क्या है डेविड में? वो खुद है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद अपने आप को डेविड के थ्रू प्रकट किया, जो डेविड इतना छोटा था, सब में छोटा था, लेकिन राजा डर गया, उसका इतना सैनिक लोग सब डर गए, हालेलुया। लेकिन प्रभु जब उसको जंगल में था, वो पेड़ चरा रहा था, शेर आया, भालू आया, अस्वल आया, सबको फाड़ डाला, उसने मार दिया। उसने फाड़ा क्यों? डेविड कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं। लेकिन डेविड के अंदर जो था, डेविड के संग जो था, हालेलुया, वो ये कार्य। फिर वो प्रभु, आज हम सोचते हो कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बोलता है मैं तेरे संग हूँ, युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके कहता है। फिर हम तो पहला डर जाते, ये होगा या नहीं। पहला हमारे अंदर अविश्वास आता है, अरे होगा कि नहीं, ऐसा बोलो कि नहीं। हम शर्म आते हैं, इसलिए घबराते हैं, हालेलुया। शर्म ही हमें डर को पैदा करता है, बोलो क्या नहीं। प्रभु ने हमें डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। आज अगर हम सच में मसीह को हम आज एक्सेप्ट कर रहे हैं, जक्कई के जैसा आज हम स्वीकार करेंगे, हालेलुया, उसका दाऊद के जीवन में जो काम प्रकट हुआ, गिदोन के जीवन के द्वारा प्रभु ने जब उसको बोला तू शूरवीर सूरमा है, मनुष्य को, एक मनुष्य को मार देता है, ऐसा तू मार देगा करके बोलता है। और हम देखते हैं गिदोन के द्वारा प्रभु ने कितना अद्भुत काम किया, कितना 3000 के ऊपर सैनिक थे उसके बाद। तो प्रभु बोलता है नहीं, इनमें भी तू क्या कर, कम कर,
नहीं तो ये लोग बोलेगा हमने युद्ध को जीता हमारे बल हमारे ताकत पर। प्रभु अपना महिमा किसको देना नहीं चाहता है। हालेलुया। वो बोला छाट इनमें, छाट दिया उसमें, आने बचे 300। हालेलुया। बुलाए बहुत से थे, लेकिन जब सत्य बताया तो सिर्फ 12 लोग बचे, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह सत्य बताया तो 12 लोग बच गए। फिर वो 12 लोगों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया। गिदोन के साथ 300 लोगों ने क्या किया है, पूरा मिद्यानियों को उन लोग ने भगा दिया, हरा दिया। उन लोग कैसा हरा दिया? हाँ, क्या लिया वो लोग ने? मशाल लिया और क्या लिया? ट्रम्पेट लिया। और क्या लिया वो लोग ने? हाँ, जोर से बोलिए। मटका। गुड। किसने बोला? गॉड ब्लेस यू। मटका, वो मटका और कोई नहीं, तुम और मैं है। हालेलुया। तुम और मैं, वो मटका है। वो मशाल क्या है? वो पवित्र आत्मा का आग है, जो आज आपको और मुझको भरना चाहता है, ताकि शत्रुओं को हम भगा सके। कैसा भगाएंगे? ये ट्रम्पेट ऑफ द साउंड जो नबी के द्वारा आया है, जो इस अंतिम दिन का संदेश है, वो हमारे लिए ट्रम्पेट है। वो हमें फूंकना है, कोई नया हमें खिचड़ी बना के नहीं फूंकना है। ऑलरेडी प्रॉफिट ने दिया है, फूंका है, वही हमें फूंकना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नया डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई 8वां प्रॉफिट नहीं है। प्रभु के हाथ में 7 तारे ही हैं, 8वां तारा नहीं है कोई, ना ही 9वां तारा है। हालेलुया। वो जिनको नया चाहिए उनके लिए है। और वो डॉक्ट्रिन कौन देता है? निकोलाइट्स वाले देते हैं, पागानिज्म वाले देते हैं, जो शैतान का सभा में होता है। वो 8वां प्रॉफिट जो रहेगा वो शैतान की तरफ से रहेगा। लेकिन हमें 10-7 इट इज फुलफिल। अभी कुछ रहस्य भी नहीं रह गया है, सब पूरा हो चुका है। हालेलुया। हम उस दिन में है आज, सिर्फ हमें बात करना है। जैसा भाई ने आज सुबह में बहुत उत्तम रीति से बोला, यू हैव टू स्पीक। शैतान बस हो गया अभी तेरा। अब हम कौन है हमें बताना है। हम मरेंगे तो भी मरने से हम डरते नहीं है, क्योंकि हम फिर से जी उठने का सामर्थ्य हम रखते हैं। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदnego डर गए नहीं वो लोग राजा ने लास्ट बार भी बोला, वो लोग ने हुक्म नहीं माना, राजा भड़क गया और 7 गुना अग्नि बढ़ा दिया। फिर वो लोग बोलना चाह रहे, बहुत गर्म हो रहा है, चलो एक बार दंडवत कर लेंगे और इधर आके प्रभु से माफी मांग लेंगे। ऐसा नहीं किया वो लोग ने। हालेलुया। मरने के लिए तैयार हो गया। बहुत से लोग बोलते प्रभु प्रेम करता है ना, वो बचाता है। प्रभु प्रेम इसलिए करता है कि तुमको वो परीक्षा में जाने के लिए, वो दुख में तुम्हें जाने के लिए, तुम शांति मिले, तुम्हें समाधान, तुम एकदम खुशी से तुम्हें। हालेलुया। वो आने वाला दिन है, जो नया आकाश नया पृथ्वी में है। यहाँ पर हमें मसीह क्या है वो पहचान आज आपको मुझको देना है। आप लोग है मेरे साथ। हालेलुया। तो हम जानते हैं गिदोन फिर क्या किया, 300 लोगों को 100 करके क्या बोला, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम बाकी मेरे पीछे। और एक ही साथ जब मैं कहूँगा उस समय मटका फोड़ दो। क्या बोला है? मटके को फोड़ दो। जो मशाले जल रही है वे सब क्या हो जाएगा, एक अग्नि जैसा भड़क जाता है, उस तरह अग्नि भड़क जाएगा। हालेलुया। हमारे अंदर वो आग है, लेकिन ये मटका को फोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये फूटेगा नहीं वो आग बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। वो आग बाहर आने के लिए हमें टूटना होगा, हमें तकलीफ में हर बातों से हमें गुजरना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये पुक खाने के लिए मीठा है, हाँ, कड़वा क्यों बोला है? हमें उस रास्ते से गुजरना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो किस तरह फिर गिदोन ने जीता वो सब हम सुन चुके हैं।
मैं खाली इसलिए, क्योंकि पतरस भी लिखता है, मैं इसलिए आप लोग के बीच में हूँ कि उन बातों को आपको स्मरण दिलाता हूँ, क्योंकि हम इंसान भूलते है ना। इसलिए तो उसने सहायक भेजा, पवित्र आत्मा भेजा कि हम भूलना नहीं, और हमें वो समझाता भी है। Praise the Lord। और आज वही कर रहे हैं। जब भी आप फिर से सुन रहे हैं तो ये इसलिए सुना रहे प्रभु कि पहला सुना हुआ आप पालन नहीं किया, यहाँ भी पालन करना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बार बार रिपीट क्यों करता है? एक बार एक प्रचारक, 3 दिन का शायद मीटिंग था, ऐसे ही मीटिंग होगा शायद, फ्रैंकलिन ने बुलाया पास्टर को। वो पास्टर रोज पश्चाताप करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार हो। दूसरा दिन भी वही प्रचार। अभी बाकी एल्डर लोग सब लोग बोलने लगे कि पास्टर के पास दूसरा मैसेज है ही क्या नहीं, तो वो लोग जाके पास्टर को मिले, पास्टर आज भी आपको वही मैसेज देगा। हाँ बोला, क्यों वही मैसेज, आपके पास दूसरा मैसेज नहीं है? बोले पहला मैसेज का ही कोई पालन नहीं किया है तो मैं दूसरा मैसेज कहां से दूंगा? बरोबर है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पाए क्यों प्रभु रिपीट करता है? हम बोलते हैं ये सुन चुका है, सुन चुके लेकिन पालन किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बार बार उन बातों को दोहराता है कि वो हमें स्मरण दिलाता है, वो हमें याद दिलाता है, ताकि हम भूलते हैं लेकिन प्रभु बोलता है। इसलिए मैं बोला कि जो प्रभु का वचन हम सुनते हैं और जो बोलते भी हैं वो पालन करते हैं या नहीं, वो पहला हमें जांचना है। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हम देखते हैं कि वैसा नबी भी एक समय हम सब जानते हैं, फिर भी मैं वापस याद दिलाता हूँ, स्मरण दिलाता हूँ। एक दिन इसी सभा में उनको प्रचार के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो उस दिन वो टी-शर्ट और जीन्स पैंट पे रहता है और नीचे पीछे छुप जाता है, और उधर अनाउंसमेंट होता है कि क्या बोलते हैं, इवेंजलिस्ट बोलते हैं वो, या रेवरेंड विलियम ब्रैनम यहाँ पर है, वो आज का सभा का प्रचारक है। तो उसके बाजू में वो छुप गया, तो वो बोलता है, वो बाजू वाला बोला इधर है, उनको अभी टी-शर्ट और जीन पैंट पे था। मतलब यहाँ हमें एक सीखने मिलता है कि प्रभु का उपस्थिति में नबी वहाँ प्रकट करता है कि हम कैसा जाना है। मतलब, और मैं ये भी सुना है एक पास्टर के द्वारा कि साउथ अफ्रीका में जब वो लोग प्रभु के उपस्थिति में आते हैं तो वो लोग के पास कपड़ा नहीं रहेगा तो उधारी लेकर, कपड़ा नया लेकर वो मंदिर में आते हैं। और नबी इसलिए वो नहीं जा रहा था कि मैं टी-शर्ट और जीन पैंट पे हूँ तो अनरेस्पेक्ट होगा करके, लेकिन प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा से भरने के द्वारा प्रभु उनको वहाँ पर खड़ा किया। और उस दिन का सरमन आप सब जानते हैं, सुने भी है, लिली ऑफ द वैली, कमल का फूल कहाँ उगता है? टीचर। उस पर उसने संदेश प्रचार किया तो सभी लोग उस दिन रो पड़े, मतलब सबका दिल को छू लिया उसने कि प्रभु मुझे गंदगी से निकाल कर एक कमल के जैसा वो मुझे खड़ा किया। मतलब बोलते हैं ना, एक प्रकाश के जैसा उसने मुझे इस्तेमाल किया। फिर मतलब जब वो प्रचार कर रहा था, लोगों का पूरा ध्यान प्रभु का आवाज की ओर था। उस भाई का मुख से जो आवाज निकल रहा था उस आवाज की ओर था, उसका पहराव को उसको नहीं देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत अद्भुत तरीके से वो सभा का हम सब सुन चुके हैं, और बहुत से लोग उस दिन पश्चाताप करते हुए अपना जीवन को प्रभु को सौंपा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आता हूँ अभी विषय में फिर एक बार कि हम अपने
अपना मार्ग को या हमारा जो कुछ भी है हम प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। जैसा मैं बताया था, एलियाजर को एक बड़ा काम दिया था और वो उसका अंजाम देने निकला और उसने अब्राहम से शपथ खाया था और उस शपथ के अधीन वो था। जब इंसान उस मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसके पास अपनी समझ का उपयोग करने का समय नहीं होता है। ऐसा समय एलियाजर के जीवन में आया कि वो खुद का समझ को उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन हम जो है हमारा समझ का सहारा हम लेते हैं क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं रहने से। हालेलुया। वो अपने घुटनों पर आ गया और प्रार्थना करने लगा और बोला, प्रभु यदि तूने ही मुझे मार्ग में आशीष दी है और मुझे यहाँ पर लेकर आया है तो यह होने पाए जो पहली कन्या पानी भरने के लिए नगर में से आती है, क्योंकि ये सांझ का समय था। कौन सा समय था वो? अभी भी सांझ हो रहा है और ये संदेश भी सांझ का समय का संदेश है। हालेलुया। जो सिर्फ किसके लिए है? रेबेका के लिए। हालेलुया। हम सब रेबेका है। एलियाजर आया और चला गया, लेकिन उसका आवाज आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है, टेप के द्वारा हो, किताबों के द्वारा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो बहुत आसान हो गया, गूगल में बटन दबा दिया, उसमें और एक अच्छा ऐप आ गया, ये मैसेज हब। बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मैं ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता हूँ। उसमें बहुत ट्रांसलेशन हुआ मैसेज भी आ रहा है। इतना आसान हुआ है। मैं प्रभु को, ये हमारे लिए प्रभु ने आसान किया है, लेकिन इसका वैल्यू बहुत से लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं उसका मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूँ। कितना लोग जानना चाहते हैं इतिहास में? इतिहास को फिर दोहराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सब के हाथ में बाइबल है अपने अपने लैंग्वेज में है ना। पहला इंग्लिश में नहीं था बाइबल। ये बाइबल शुरू में 3 ही भाषा में था, ग्रीक, अरेबिक एंड हिब्रू। 3 ही भाषा में था और इसको ट्रांसलेशन करने का अलाउड ही नहीं था। मैं आप लोगों को 13 AD में लेके जा रहा हूँ। 13 AD to 14 AD में। समझ में आ रहा? एडी बोलते हैं ना। मेरा इंग्लिश पुअर है, आप लोग ईस्वी सन 1300 सदी 1400 सदी में हम जाएंगे। आप लोग कितना लोग आना चाहते हैं? आओ। जितना लोग इधर ही रहना इधर ही रहो, मैं तो जा रहा हूँ। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब भी आएंगे हम साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पीछे नहीं, हम आपके पीछे आ रहे हैं। हम सब, लेकिन हम सब मैसेज के पीछे हैं। हमें एलियाजर के पीछे आने जाना है क्योंकि एलियाजर मैसेज लेकर आया है ना। इसके लिए, रेबेका के लिए, उसका दुल्हन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जॉन वाइक्लिफ नाम सुना होगा, यू कैन चेक इन द गूगल, आपको सब उसका लाइफ स्टोरी मिल जाएगा। और उसके बारे में मैं थोड़ा इतिहास में देखा है। और उसका जन्म 1320 AD और उसका मरण 1384। फॉर मच ऑफ हिज लाइफ ही वॉज ए थियोलॉजियन, लेक्चरर एंड एकेडमिक एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। It was only at the very end of his life that he turned to Bible translation. उसका जीवन के अंत में वो बाइबल ट्रांसलेशन के लिए, इंग्लिश में बाइबल ट्रांसलेशन के लिए उसको एक प्रेरणा मिला। आज आप इसका महत्व आप जानेंगे आज। फिर आप कभी बाइबल को जो जो निगलेक्ट करते हैं उनको नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो सच में बाइबल का मूल्य जानेगा
वो उसको ऐसा पकड़ के रखेगा, ऐसा रखेगा, पूरा उसको अपना हृदय में उसको रख ले। जैसे दाऊद राजा बोलता नहीं है, प्रभु तेरा वचन को किधर रखा है? क्यों? हृदय में रखा है ताकि पाप न करो। आप कहाँ रखेंगे? क्योंकि ये हृदय इतना कपटी है, इतना धोखा है। उधर वचन रहेगा तो ही हम पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें आज ये वचन का महत्व जानेंगे तो जरूर, मैं प्रभु जानता है और प्रभु उनके लिए बात करता है। हालेलुया। और अब प्रार्थना करो, बोल प्रभु मैं सुनता हूँ। आमीन। तो जॉन वाइक्लिफ बाइबल के बारे में क्या कहता है? होली स्क्रिप्चर इज द प्री एमिनेंट अथॉरिटी फॉर एवरी क्रिश्चियन। उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे इंग्लिश पढ़ता है लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखता है एंड द रूल ऑफ फेथ एंड ऑफ ऑल ह्यूमन परफेक्शन। हर एक मनुष्य के लिए सिद्ध बनने के लिए ही ये पवित्र बाइबल लिखा गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल अनुवाद किया और उन्होंने जॉन वाइक्लिफ, उन्होंने बाइबल करीबन 200 बाइबल अनुवाद किया और लोगों को दिया। इस बीच वो मर गया। फिर उसने कितना बाइबल प्रिंट किया? 200 बाइबल इंग्लिश में फर्स्ट टाइम उसने प्रिंट किया, नहीं ट्रांसलेशन किया। उस समय कलीसिया में जो एल्डर थे या बिशप थे या पंडित थे, उनको ये पता चल गया कि बाइबल लोगों के हाथ में आ गया। और उस समय बिशप बर्नार्ड को पता चल गया और उसने कहा कि किसने ये बाइबल इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। तो पता चला कि जॉन वाइक्लिफ ने इस बाइबल का ट्रांसलेशन किया है। तो वो पूछ रहे हो कहाँ पर है? वो लोग बोला वो मर गया है। मर गया? कहाँ पर उसको दफनाया? उसको कहाँ पर दफनाया? मैं ये क्यों बता रहा हूँ? आपको बाइबल का मूल्य आप जानेंगे, उसका कीमत जानेंगे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? और जब मैं भी देखा, मैं पढ़ा और मैं भी सोचा कि सचमुच ये बाइबल हमारे जीवन को एक परमेश्वर के स्वरूप में बदलता है। हालेलुया। अगर हम पालन करेंगे तो बर्नार्ड बोला किधर है वो, कहाँ? अच्छा कहाँ उसको दफनाया? उसका वो दफनाया अभी कितना तो दिन हो गया, कितना तो महीने, कितना तो साल हो गया। फिर वो बोलता है, फिर वो एक काम करो, उसका हड्डियों को निकालो बोलता है। उस कब्र में से हड्डियों को निकालो। और उन्होंने हड्डियों को निकालकर बीच रोड में उसको डाल दिया। बीच रोड पे 3 दिन तक उसने रखा उन हड्डियों को। 3 दिन रखने के बाद फिर उसने कहा कि उन हड्डियों को केरोसिन डालकर जला दो बोला। उन हड्डियों को केरोसिन डालकर जला दो। और वो राख हो गया जलकर। और उस राख को स्विफ्ट नदी में वो लोग ने डाल दिया और कहा कि देखो इसने बाइबल अनुवाद किया था, इसलिए उसे जलाकर उसका राख को नदी में डाल दिया है। अगर कोई बाइबल पढ़ेगा या अनुवाद करेगा तो या बाइबल किसी के पास दिखेगा तो जीवित ही उसे इस तरह जला दिया जाएगा। जीवित ही उसे इस तरह जला दिया जाएगा। आप जानो हमारे हाथ में इंग्लिश बाइबल फर्स्ट आया, क्या सैक्रिफाइस वो लोग का था, ये आप जब जानेंगे, वो सिचुएशन को आप अपने सामने लाएंगे तो तब आप इसका कीमत को जानेंगे। तब उसको आप ऐसा संभालेंगे जैसा एक व्यक्ति ऐसा संभाल के रखता है। बोलते तो ऐसा क्यों रखा है? नहीं, प्रभु ने कहा ना आकाश भी मिट जाएगा,
हाँ, पृथ्वी सब कुछ मिटने वाला है, लेकिन ये कभी नहीं मिलेगा। वो बर्नार्ड बिशप सोचा कि मैंने बाइबल सब जला दिया और मैंने कानून भी निकाला, कोई भी बाइबल ट्रांसलेशन करेगा उसको इस तरह मैं जला देगा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने लिखा हुआ बाइबल को जलाया। अगर ये बाइबल किसी का जीवन में है रहेगा, वो कोई नहीं जला सकता। इसलिए उसको हमारे जीवन में अप्लाई करना है, क्योंकि आने वाला दिनों में आमोस 8:11 में लिखता है कि खाना और भोजन का अकाल नहीं, वचन का सुनने का अकाल होगा। इसलिए अभी हमें बाइबल क्या करना है? हाँ, जिसको हमें बाइबल बनना है, वचन हमें बनना है। वचन हमको पढ़ेंगे लोग। 28 क्या है? अपोस्टल 28 चैप्टर है ना? फिर आप और मैं 29 प्रॉफिट बोल कर गया है। आप और मैं 29 चैप्टर होना है, मसीही दिखना है हमें आप में। हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ? थोड़ा जाएंगे आगे, सुनना चाहते हैं या भूख लगा है, नाश्ते का टाइम हो गया है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? वो 3 बार खाते हैं तो ये भी 3 बार खाना है ना। हाँ, तभी हम आत्मा में बल रह पाएंगे। या तंदुरुस्त तो रहना ही, हमेशा तत्पर तैयार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस बर्नार्ड बिशप ने पूरा धमकी दिया, बस इतना सब खामोश। जब वो राख को जलाया और उसने हुक्म निकाला, वही बाइबल किसके हाथ में नहीं दिखना चाहिए, कोई पढ़ना नहीं चाहिए। आपको मालूम है रोमन कैथलिक में खाली फादर ही पढ़ते है ना? ये कब से आज में मार्टिन लूथर कैसा प्रोटेस्ट किया, वो अभी आएगा इसमें। कैसा उसने जान लिया कि क्यों प्रोटेस्ट किया, हमें पता चलता है। तब तो नबी बोला कि मार्टिन लूथर ने किस बात का प्रोटेस्ट क्यों किया कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने ऐसा धमकी देने के बाद और ऐसा कानून बनाने के बाद 100 साल तक कोई बाइबल का नाम नहीं, क्योंकि कोई भी बात करेगा वो उसने तो धमकी दिया है, जला देगा करके, और लोग डर कर 100 साल तक। फिर 100 साल के बाद कोई भी बाइबल के संपर्क में नहीं गए। उसके बाद विलियम टेंडल एक व्यक्ति था, नबी भी इनका नाम लेता है, विलियम टेंडल। भाई ने सुबह में बताया था विलियम कैरी कितना साल इंडिया में रहा? 42 इयर्स इंडिया में रहा। 36 लैंग्वेज उसने ट्रांसलेशन किया। 36। आज आपके हाथ में आपने अपने भाषा में है, तो उन महान सेवकों का कारण ही आज हमारे हाथ में हमारे भाषा में बाइबल है। उसका मूल्य आप लोग जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो विलियम टेंडल का मन में प्रभु ने प्रेरणा दिया, वो भी इंग्लैंड में था और उस बाइबल का अनुवाद करना चाहिए ऐसा सोचने लगा। लेकिन इंग्लैंड में रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो देश को चला गया, जर्मन में चला गया और जर्मनी में जाकर नया करार का उसने अनुवाद किया। ये कितना अजीब बात है, देखो जर्मनी में अनुवाद करते समय एक अजीब बात यहाँ पर है, इसलिए कह रहा है जब वो जर्मनी में ये बाइबल अनुवाद कर रहा है उसी समय वहां पर मार्टिन लूथर नाम का व्यक्ति उससे भेंट किया। मार्टिन लूथर, हालेलुया। मार्टिन लूथर बाइबल कॉलेज गया था। एक दिन उसे कुछ काम के लिए जर्मनी से रोम भेजा गया और रोम में पोप और बाकी लोगों का काम देखा और उसे उनका काम सही नहीं लगा,
क्यों उसको उनका काम देखा और इसको सही नहीं लगा? जो बाइबल ट्रांसलेशन किसने किया है? विलियम टेंडल किया है। उसमें देखा अरे वचन में क्या लिखा है और उधर चर्च में क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए फिर बाद में उसने क्या किया, जो वचन में देखा वो इधर तो नहीं दिख रहा है। और क्या बोल रहे हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं? मार्टिन लूथर बोल रहा है उनका काम सही नहीं लगा, वो वापस आ गया और अक्टूबर 30 1570 एडी में जो 95 नियम एक यादी को उस चर्च के दीवार पर लगा दिया और कहा कि हमें पोप नहीं अंतिम अधिकार बल्कि बाइबल है। आज चर्च में पोप, आज पूरा हिंदू, अभी पूरा वर्ल्ड में अभी पोप का ही क्या आने वाला है? हाँ, अधिकार आने वाला है। एंटी क्राइस्ट वही है एक्चुअली। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही पूरा अभी क्या करने वाला है? अधिकार अपने हाथ में लेने वाला है। उधर उसने शुरू तो किया है उनका चर्च में कि वो जो हुक्म दे रहा है वही उनको सबको पालन करना है। लेकिन मार्टिन लूथर जब वचन में देखा ये तो पूरा वचन के खिलाफ है, वचन का जो अधिकार है ये लोग तो उनका अधिकार को जता रहे। क्या था वो निकोलाइट्स का जो शिक्षण है, हम देखते हैं किस तरह कलीसिया के अंदर निकोलाइट का अर्थ हम सबको मालूम है, जन साधारण पर अधिकार पाना। और वैसा वो पोप क्या किया है, उस रोम में अधिकार प्राप्त किया। और जब मार्टिन लूथर जाकर देखा, एक आवाज उसने उठाया कि पोप को अधिकार नहीं है किसी का न्याय करने का, सिर्फ बाइबल ही अधिकार है करके उसने बताया। हाँ, आज आपका मेरा न्याय भी कोई पोप या कोई बिशप, कोई पास्टर, कोई डीकन नहीं करता है, वचन ही करता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो डेट बता दिया 30 अक्टूबर 1570 एडी 95 उसने क्या बोलते हैं उसको, नियम को जो खिलाफ है उस चर्च के बाहर ही उसने ठोक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बाकी लोग, और उतने वो बोल रहा है कि अंतिम निर्णय बाइबल का है, पैसों के द्वारा नहीं स्वर्ग में जा सकते हैं, है ना। उधर बोलते हैं ना, उधर क्या बोलते हैं उसको, हाँ उधर बोलता है तूने ये पाप किया तो ये इतना दे, तेरा पिता स्वर्ग में जाना है तो इतना दे, वो जाएगा। ये लोग बेचते हैं स्वर्ग में, पैसा लेके स्वर्ग में बेचते हैं। मेरा प्रभु वो उतर कर आया आपके लिए, मेरे लिए कीमत चुकाया और हमको ले जाने, वापस आने वाला है वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो वापस आएगा और हमें लेके जाएगा। ये लोग नहीं बेचने वाले, कोई लोग ये सब व्यापार बना दिया है। आज चर्चों में ये अंतिम कलीसिया कालों में भी हम देखते हैं, एंडाई में भी ऐसा बिजनेस हो गया है पूरा। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, हमारे पास रहे या न रहे, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, उसका सत्य वचन हमारे साथ है, हमें किसी बात का चिंता नहीं करना। चाहे कोई मेरे साथ आए ना आए, ना मेरा परिवार आए ना कोई आए, ना मेरा पत्नी आए, लेकिन मुझे है। हालेलुया। इंडिविजुअल आप समझ रहे हो? मैं 5 मिनट लो ब्रदर। तो वो लोग पैसा देकर स्वर्ग खरीदना चाहते हैं, पैसा देकर स्वर्ग को खरीदते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें मुफ्त में देता है, ऐसा